Great morning, students. How are you all? I hope you are safe at home. Welcome to your reasoning and know your aptitude class. It is a very interesting subject. I hope you will enjoy doing this subject. So let's get started with this book. Students, we are going to start chapter 1 from your book on page number 1. The name of the chapter is Patron. Let's get started. Introduction. You know the alphabets, its letters and their order. You know the alphabets? That means A, B, C, D, its letter and their order. You know their correct order. You also know how to count numbers in their correct order. You also know how to count numbers, that is 1, 2, 3, 4 and so on, and their correct order in which they come. Now imagine a series of number or a letter where each unit, number or letter that come after another unit show a change in its order. Now imagine, that means you have to imagine a series. Series is a group of letters or numbers where each unit, that means each unit can be a number or a letter that comes after another unit show a change in order, shows a change in their order. If this change in their order is the same for other unit in the series, you call this a pattern. If there is a change in the order and the change is same with the other unit in the series, it is called pattern. Let's see what is pattern with an example. So students, let's see what is a pattern. Pattern is a group of letters, that is A, B, C, D, E, F and so on, or number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, or a figures arranged in some order, that are arranged in some order. It can be addition, subtraction, multiplication, division, or it can be repetition of the order also. So a pattern can be of a letter, a number or a figure that are arranged in some order. तो पैटर्न एक ग्रुप ऑफ लेटर्स का भी हो सकता है, ABCD का नंबर्स का भी हो सकता है और फिगर्स का भी होता है जो किसी ऑर्डर में अरेंज है. किसी ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब चेंज है उसमें, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का भी हो सकता है और डिवीजन का भी हो सकता है. लेट्स सी विद एग्जांपल्स. Let's see some example of pattern. In first example, you can see the different shapes or figure arranged. So let's see what order is followed here. First is square, second is triangle, third is circle, fourth one is square, fifth one is triangle, sixth one is circle, then square, then triangle, then circle. You can see these three shapes are repeating themselves. So they are following fixed order now. So first square, triangle, circle, square, triangle, circle, square, triangle, circle. So this is a pattern of a shape. Now come to the second example. You see the numbers written here: 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9. You can see these are forming a pattern. Let us see the order they are following. So first 1 is written, then we are skipping 2 and writing 3, then we are skipping 4 and writing 5, then we are skipping 6 and writing 7, then we are skipping 8 and writing 9. So you can see a fixed order is followed here. So similarly we see an example 3. In this example A, double A, triple A is written. So the letter A is repeating itself in 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and so on. I hope you understood what is a pattern. If you know the order in which the second unit come after the first, it will be easy for you to find out the next unit or any missing unit in the series. If you understood in what order the second unit is coming, then it will be easy for you to find the next unit
or the missing unit. अगर आपको ऑर्डर समझ आ जाता है कि पैटर्न में क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो आपको अपनी नेक्स्ट प्लेस निकालना इजी हो जाएगा, या जो मिस हुई है यूनिट वो निकालना सीरीज में इजी हो जाएगा. Here are some useful instructions that will help you to find different pattern in different types of series. अब नीचे कुछ आपको instructions दी गई हैं, rules हैं जो आपको मदद करेंगे कि पैटर्न में किस टाइप से हम मिसिंग डिजिट्स या यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी टाइप 1, मिसिंग नंबर्स और लेटर इन अ सीरीज. मिसिंग मतलब जो मिस हुए हैं नंबर्स और लेटर्स इन अ सीरीज. रिमेंबर आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ लेटर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड सीरीज फ्रॉम E to Z. आपको ऑर्डर याद रखना है लेटर्स का फ्रॉम E to Z. रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर फ्रॉम Z to A. रिवर्स मतलब उल्टा ऑर्डर Z से A का, उस ऑर्डर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ऑर्डर ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ऑर्डर मतलब नंबर्स का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन. रिवर्स ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 11. रिवर्स मतलब उल्टा ऑर्डर जो नंबर्स एंड होते हैं 1 से. ऑर्डर एंड काउंट ऑफ लेटर्स और नंबर यू स्किप टू गेट अ पैटर्न. ऑर्डर याद रखना पड़ेगा और काउंट याद रखना पड़ेगा, लेटर्स हो या नंबर्स का. जब हम स्किप करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं कि पैटर्न हमें मिल सके. गेट अ पैटर्न मतलब पैटर्न. ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप पैटर्न करेंगे. सो लेट्स सी, फाइंड आउट. फर्स्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन सीरीज. हमें पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा कि सीरीज में क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है. सी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन न्यूमेरिकल सिस्टम और द ऑर्डर ऑफ लेटर इन अल्फाबेट्स. मतलब हमें देखना है ये किस तरह से डिफरेंट है. जो हमें ऑर्डर पता है ABCD का हो गया या 1, 2, 3 का हो गया, कैसे डिफरेंट है. सेकेंड है नाउ डू स्किप काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग टू नो देयर पैटर्न. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर समझ नहीं आता तो हम स्किप काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने नंबर्स या डिजिट को हम छोड़ रहे हैं काउंटिंग में, कि हमें पैटर्न का पता चल सके. थर्ड है यूज द सेम पैटर्न बिटवीन द मिसिंग लेटर्स और एंड द लेटर्स दैट कम्स बिफोर इट. वही पैटर्न जब हमें पता चल जाएगा कि स्किप काउंट की कितने डिजिट्स को हम या कितने नंबर्स को छोड़ रहे हैं, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे जहां मिसिंग लेटर्स हैं या उससे पहले जो लेटर है उसे देख के हम मिसिंग लेटर है. To find the missing numbers in the series, use mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. कहते हैं अगर हमें missing numbers निकालना है तो हम mathematical operations भी use कर सकते हैं, जो हमारे addition plus हो गया, subtraction minus हो गया, multiplication multiply करना हो गया, division हो गया. मिसिंग फिगर्स इन अ सीरीज. टाइप 2 क्या हो सकता है, मिसिंग फिगर इन अ सीरीज. सीरीज में मिस हुए हैं फिगर्स. फर्स्ट है सी द फीचर्स दैट आर सिमिलर और डिफरेंट इन द गिवन सीरीज. हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या फीचर्स सिमिलर हैं जो सीरीज हमें गिवन है, या क्या डिफरेंस आ रहा है. फाइंड द पैटर्न ऑफ चेंज. चेंज का हमें पैटर्न देखना पड़ेगा. चूज द ऑप्शन दैट आर मिसिंग. चूज करने पड़ेंगे जो ऑप्शंस हमारे मिस हैं. With the given examples in your book, example number 1 is A, F, K and then it's a question mark. You have to find the fourth letter. So option A is O, M, N, P. So you have to see the pattern followed here. So let's see what pattern is followed here. A, F, K, A, F, K, A के बाद F आ रहा है तो हम देखेंगे A और F में कितना डिफरेंस है. सो A के बाद आता है B, C, D, E. So we are leaving 4 letters here. Then we have written F. हम 4 लेटर को छोड़ रहे हैं, उसके बाद F आ रहा है. तो A में हम 4 लेटर को स्किप कर रहे हैं, तब हमारा F आ रहा है. सिमिलरली F के बाद हमने K लिखा हुआ है. K और F का डिफरेंस देखते हैं. F के बाद आता है G, H, I, J, then K. तो इसमें भी हमने 4 लेटर्स छोड़े हैं, तभी हमारा K आया है. अब K के आगे निकालना है तो हम फिर 4 लेटर्स छोड़ेंगे. K के बाद क्या आता है हमें L, M, N, O, फिर क्या आता है हमारा P. तो आंसर क्या है हमारा P. समझ आ रहा है बच्चों. एग्जाम्पल नंबर 2. अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे. 5, 9, 13 देन क्वेश्चन मार्क. नंबर्स क्या गिवन है हमें 5,
9, 13, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन है 5, 9, 13 और फोर्थ नंबर हमें निकालना है। तो हम देखेंगे 5 और 9 में डिफरेंस कितना है। 5 में हम कितना ऐड करेंगे कि 9 आएगा, तो चेक करो 5 में हम कितना ऐड करेंगे। 5 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तब आता है हमारा आंसर 9। सिमिलरली आगे चेक करेंगे 9 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 4, तभी आंसर आएगा 13। और अब फिर हम 13 में फिर सेम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 70। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका 17। 3 देखेंगे 6, 12, 18 देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ पर देखा जाए तो सिंपली हम देखेंगे तो ये 6 का टेबल है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा क्या होता है 24। तो आंसर क्या आ गया हमारा 24। 4 देखेंगे, आप ये फिगर देख सकते हैं, स्क्वायर है, उसमें आगे स्लांटिंग है, तो यहाँ 1 लाइन है स्मॉल, यहाँ 2 लाइन है स्मॉल, यहाँ 3 लाइन है स्मॉल। तो हमें फोर्थ देखना है, फोर्थ में क्या होगा। इसमें ये शेप ऐसे बनी है, इसमें ये शेप ऐसे और इसमें ये, पर हमें इस पर नहीं ध्यान देना, हमें ध्यान देना है इस पर। इसमें 1 स्मॉल लाइन है, इसमें 2 स्मॉल लाइन है, इसमें 3 स्मॉल लाइन है। तो आगे हमारा 4 वाला देखेंगे। ऑप्शन चेक करो, 4 वाला है कोई, है तो कौन सा है, ये 4 स्मॉल लाइन्स है, तो ये हमारा आंसर है। I hope you have understood the concept of pattern very well. We are going to do the basics in our next class. Thank you and have a nice day.